السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم عشا پاکستانی یوٹیوب چینل کی طرف سے سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آج کی ویڈیو کا آغاز بھی حسب روایت درود پاک سے کریں گے، اور اس سے پہلے وہ میرا شعر پڑھتے رہو درود مومنو ڈیوٹی یہی تو ہے، پڑھتے رہو درود مومنو ڈیوٹی یہی تو ہے، سارے جہاں کی مومنو بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آج کی ویڈیو کا موضوع ہمارا ہوگا نماز جنازہ کا ادا کرنے کا درست طریقہ۔ یعنی نماز جنازہ جو ہے اس میں ہمیں جو عام طور پر لوگ جو ہے نا وہ نماز جنازہ پڑھتے ہوئے بھی جھجک محسوس کرتے ہیں، یا معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اپنی نماز جنازہ کی طرف توجہ دینے کی بجائے نماز جنازہ پڑھتے ہوئے ہم آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ کرے گا ویسے میں بھی کرتا جاؤں گا۔ معلومات نہ ہونا جو ہے نا یہ اس کی وجہ ہے۔ تو ہمیں نماز جنازہ جو ہے وہ سیکھنی چاہیے اور نماز جنازہ میں شریک بھی ہونا چاہیے۔ تو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ آسان سا ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ نماز جنازہ میں دو چیزیں فرض ہیں، ایک قیام یعنی کھڑا ہونا، اور دوسرا تکبیرات کی ادائیگی، یعنی چار تکبیریں جو اضافی ہوتی ہیں، یعنی نماز جنازہ کی جو چار تکبیریں ہوتی ہیں وہ چاروں ادا بھی کرنی ہیں۔ ہمارا عام طور پر یہ بن گیا اصول کہ جو کچھ امام نے پڑھنا ہے ہم نے صرف پیچھے خاموش ہی رہنا ہے، نہیں، تکبیریں جو ہے وہ کہیں گے چاروں کی چاروں کو، پھر آپ کی طرف سے نماز جنازہ ادا ہوگی، پھر آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ صرف کھڑے رہے اور خاموش رہے تو یہ جو نا یعنی آپ کی یعنی تکبیریں نہ کہنا جو نا وہ نماز جنازہ کی ادائیگی نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ جو ہے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد ہم نے ثنا پڑھنی ہے۔ اول تو یہ ہے کہ جو نماز جنازہ کے حوالے سے ثنا ہے وہ پڑھی جائے، اگر نہیں وہ آتی تو نماز میں جو عام طور پر پڑھتے ہیں ثنا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح یہ پہلی تکبیر ہوگی، اس میں جب امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر تو آپ بھی اللہ اکبر کہیں گے، یہ لفظوں کی ادائیگی آہستہ آواز میں آپ بھی کریں گے جیسے نماز میں کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب دوسری تکبیر کہیں گے امام صاحب تو اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہوتا ہے درود شریف۔ درود شریف جو ہے وہ جو نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی وہی پڑھیں گے۔ اسی طرح سے تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، تیسری تکبیر، اور ہاتھ نہیں اٹھانے ہوتے، جب بھی تکبیر کہیں گے تو آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں، صرف اللہ اکبر ہی کہنا ہے۔ پہلی تکبیر کہتے وقت ہاتھ اٹھانے ہیں، اس کے بعد کسی تکبیر میں بھی ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں، ہاتھ باندھے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد تیسری تکبیر کے بعد ہم پڑھیں گے نماز جنازہ جو ہے اس میں جس میت کی پڑھ رہے ہیں، اگر وہ بچہ ہے تو بچے کی دعا، اگر بچی ہے تو بچی کی دعا، اور اگر بڑوں میں سے ہے چاہے مرد یا عورت ان کی ایک ہی ہوتی ہے دعا، وہ نہیں آتی سیکھیں، بہت ضروری ہے، یہ سیکھنا چاہیے، اپنا مذہب جو ہے اس کے اوپر عبور حاصل ہونا چاہیے۔ اور اگر نہیں بھی آتی تو نماز والی دعا جو ہے یا اس کے علاوہ اور کوئی عربی میں دعا آپ کو آتی ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ نماز جنازہ کی دعائیں جو ہیں وہ یاد کی جائیں تینوں، اور وہ تینوں آنی چاہیے، بہت تھوڑا تھوڑا فرق ہے ان میں، اور وہ سیکھیں اور وہ ادا کریں۔ اسی طرح سے آخر پہ یہ کرتے ہیں کہ بعض لوگ ہاتھ باندھے باندھے ہی سلام پھیر لیتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ دائیں طرف جب سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو دائیں طرف والا ہاتھ کھول دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب بائیں طرف بولتے ہیں تو اس وقت بائیں طرف والا ہاتھ چھوڑتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب
चौथी तकबीर इमाम साहब कहेंगे, चौथी और आखिरी तकबीर, तो उसके फ़ौरन बाद आपने दोनों हाथ इकट्ठे खोल देने, और उसके फ़ौरन बाद ही जब हाथ खोल लेंगे और तो चौथी तकबीर की अदायगी हो जाएगी, तो साथ ही जब इमाम साहब कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो आपने भी कहना है, और फिर दूसरी तरफ भी इसी तरह से कहना है। तो इस तरह से नमाज जनाजा जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। इसके बावजूद किसी के जहन में कोई सवाल रह गया हो तो वो सवाल जो है वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब भी आएगा। और इसी तरह से अगर आप ये महसूस करते हैं कि मैंने कुछ गलत बताया है तो उस हवाले से भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। नहीं तो फिर इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूमात मिले और दुरुस्त नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका सभी मुसलमानों को आए। अब आते हैं अपनी रूटीन की गुफ्तगू की तरफ, बल्कि आज की रूटीन की गुफ्तगू में ज़्यादातर ये चाहूँगा कि फ़लस्तीन के हवाले से जो फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है, पूरी दुनिया में लोग सिर्फ़ और सिर्फ कुछ मुल्कों में एहतजाज हो रहा है और सिवाय उर्दन और ईरान के बाकी मुल्कों की दिलचस्पी इतनी नहीं है। और उधर दूसरी तरफ यह है कि हमारे मुसलमान भाइयों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। हम वाक़या करबला जो है उसको याद करते थे, उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करते थे, फिर उस पर हम अपना गम का इजहार करते हैं। तो ये सारा कुछ तो हमने माजी में, लेकिन अब ये अगर देखना हो तो इस वक्त करबला के हालात जो हैं इस वक्त भी इस दुनिया में हो रहे हैं कि यानी एक मुल्क जो है वो बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर यानी किसी सोच के वो जुल्म और सितम किए चला जा रहा है और बाकी मुल्क उसकी पीठ पर खड़े हैं। जबकि फ़लस्तीनियों का साथ देने वाले जो दुनिया में 157 मुल्क हैं गालबन, या 57 मुल्क हैं इस्लामी, उनमें से कोई भी बुलंद आवाज़ से बात भी नहीं कर रहा सिवाय एक उर्दन के, और दूसरी तरफ ईरान है। लेकिन वो भी ज़बानी जमा खर्च है बात की हद तक, लेकिन ये ज़्यादती हो रही है और हमारे सामने हो रही है। हम रोज़ टीवी पे अपने मोबाइलों पे फुटेज देखकर, तस्वीर देखकर, जुल्म और सितम होता हुआ देखकर आराम से सो जाते हैं। तो प्यारे पाकिस्तानियों, दुख का लम्हा है कि हमें कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, एक वैल्यूएबल मुल्क है, वहाँ पर सूरत हाल यहाँ तक आ गई कि एहतजाज भी बहुत कम हो रहा है, और एहतजाज जो किया जा रहा है उसमें भी बाज़ दफ़ा हुकूमत जो है मुदाखलत करती है और पाकिस्तानियों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, कितने जुल्म की बात है कि हम एहतजाज भी नहीं कर पा रहे, और हमारे हुक्मरान भी अगर फ़लस्तीनियों का साथ नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये इसराइल का साथ दे रहे हैं। और ये हमारा ही अलमिया नहीं है, इतने ढेर सारे इस्लामी मुल्क हैं और सब का ही यही अलमिया है। कितनी बदनसीबी है कि हमारे दौर में, हम जिस दौर में ज़िंदा हैं उस दौर में वाक़या करबला जो है उसे एक दफ़ा फिर दोहराया जा रहा है, और हम उसी तरह से जैसे कूफे वालों ने कुछ नहीं किया था इसी तरह से हम भी कुछ नहीं कर पा रहे। अफसोस, सद अफसोस, हम कितने जालिम ठहरे, कितने बदनसीब ठहरे, ये हमें अपने अपने गिरेबानों में खुद ही झांकना चाहिए। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ भी हो सके आवाज़ बुलंद करें, हुक्मरानों को शर्म दिलाएं, और साथ साथ खुद भी जिस कदर हो सके, चाहे वो सोशल मीडिया है और चाहे वो अमली तौर पर एहतजाज का मौका मिले जहाँ भी, उसमें हिस्सा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एहतजाज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर इस बात को उठाइए और हुक्मरानों को भी शर्म दिलाइए कि वो भी फ़लस्तीन के लिए एक धमकी मेज़ बयान ही कम अज़ कम इसराइल को दे दीजिए, तो मेरा ख्याल है उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और जंग जल्दी रुकने के चांसेस पैदा होंगे। इसी तरह से कोई इमदाद कर सकते हैं, वहाँ पर कोई आप फ़लस्तीनियों की मदद के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो भी कीजिए। मेरे पाकिस्तान के हुक्मरानों, हमें सोचना चाहिए, हमें गौर करना चाहिए।
कैसे इस्लामी मुल्क है हम और कैसे एटमी क़ुव्वत है हम कि हम एक धमकी भी नहीं दे सकते। फिर क्या हमारा मकसद है एटमी क़ुव्वत होने का, और कौन सी हम खिदमत कर रहे हैं अपने मुसलमानों की कि हमारे सामने हमारे फ़लस्तीनी भाई जो हैं वो शहीद हो रहे हैं और हम कुछ भी नहीं, करना तो दूर की बात है, कह भी नहीं रहे। ये ज़्यादती जो है, इस पर अफसोस का इजहार जितना कर सकते हैं वो करें, सोशल मीडिया पे शोर मचाएं, और साथ साथ अगर कहीं आपके आसपास फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज हो रहा तो उस एहतजाज में भी ज़रूर शिरकत करें। तो प्यारे पाकिस्तानियों, यही अफसोस की सूरत हाल के साथ कि हम अपने फ़लस्तीनियों के लिए, अपने बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। अल्लाह ताला हमें इसमें अपना हिस्सा अदा करने की, यानी चाहे सोशल मीडिया पर आगे एहतजाज करें, किसी भी तरह से करें, और चाहे वो अमली तौर पर कहीं आपको मौका मिले तो उसका एहतजाज करें। ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे। और आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।